Hello everyone. In previous classes, we have discussed about the measurement of stream flow. And in stream flow, we have seen the stage measurement and velocity measurement. And also seen on the basis of velocity and cross-sectional area, how we will get the discharge of that stream. So either irrigation canals के केस में वाटर मेजरमेंट करना हो या स्ट्रीम फ्लो के केस में वाटर मेजरमेंट करना हो, बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन द measurement of discharge. So in stream flow measurement and irrigation water measurement, some methods are common. So in today's class, we will discuss about the irrigation water measurement method. So for irrigation, the water is conveyed either by open channel or the pipes. So different cases में हम different methods use कर सकते हैं for the measurement of water or the discharge or the amount of water that is delivered to the field or in distributaries. So in case of open channel flow, there are several methods like volumetric method, velocity area method, measurement of irrigation water using structures, and tracer methods. And further, like in velocity area method, there is a float method, current meter method. In case of structure, there are several structures like weir, flume, orifice, meter gate, etc. And in tracer method, there are two methods. One is the dilution method, in which we use the fluorescent dye or salt, and another one is the isotopic method. And in pipe flow measurement, there is a volumetric method, water meter, Venturi meter, and coordinate method. So in today's class, we will see the measurement of irrigation water in open channel flow using volumetric method, with velocity area method, and measurement structure. So we will see one by one. First, we will see the volumetric method. So in volumetric method, we use a container जिसकी कैपेसिटी हमें पता हो कितनी कैपेसिटी हो सकती है. एम्प्टी कंटेनर लेंगे एंड इसे फिल करेंगे विद द पाइप. इन दिस केस इट्स अ ओपन चैनल. सो ओपन चैनल के इरिगेशन चैनल के केस में वी आर कन्वेइंग वाटर फ्रॉम दिस चैनल टू द फील्ड बाय यूजिंग द साइफन ट्यूब. सो इस साइफन ट्यूब के थ्रू कितना वाटर इस फील्ड में जा रहा है ये मेजर कर सकते हैं बाय फिलिंग दिस बकेट. एंड इस बकेट को फिल होने में या कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर इस बकेट में फिल होने में या कंटेनर में फिल होने में जितना भी टाइम लगेगा, इन दोनों के बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज रेट ऑफ दिस ट्यूब. सो वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज रेट इन लीटर पर सेकेंड. इसका जो वॉल्यूम होगा बकेट का ये लीटर्स में होगा एंड टाइम टेकन विल बी इन सेकेंड. सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डिवाइड कर देंगे टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द कंटेनर एंड विल गेट द डिस्चार्ज वैल्यू. अब ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड कहाँ यूज करते हैं? सो साइफन ट्यूब्स के जब यूज कर रहे हैं इरिगेशन कैनाल से फील्ड्स में वाटर को कन्वे करने के लिए, उस केस में यूज करेंगे. एज वेल एज जब हम पर्शियन व्हील यूज करते हैं या लेदर बकेट यूज करते हैं, इस केस में भी वॉल्यूमेट्रिक मेथड का यूज करते हैं. दिस इज द पर्शियन व्हील. ये बैरल है और चैन है जिसपे लिंक्ड है मल्टीपल बकेट्स एंड वाटर कैरी कर रही है एंड दिस वाटर इज एम्प्टीड इन दिस बॉक्स और द कंटेनर. नाउ ओपन चैनल फ्लो में वेलोसिटी एरिया मेथड. सो वेलोसिटी एरिया मेथड मीन्स नेम इटसेल्फ से क्लियर है, टर्म से वेलोसिटी एरिया मेथड. सो देयर इज अ कंटिन्यूटी इक्वेशन दैट बाय मल्टीप्लाइंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे उस पॉइंट के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, देन वी विल गेट द डिस्चार्ज रेट. सो कौन कौन सी मेथड्स यूज करते हैं टू गेट द वेलोसिटी? we use the multiple methods like float method use करते हैं, current meter method use करते हैं. And in current meter there are two type of current meter. One is the horizontal axis current meter, another one is the vertical axis current meter. So two type of current meters are available. So by multiplying the velocity with area we'll get the discharge. And we have already discussed this velocity area method by using the float and current meter in previous lecture, and the link of this lecture is given in the description box. Now measurement structure. So in measurement structure there are depth meter. So this is the side
व्यू ऑफ दिस डेप्थ रिच मीटर एंड इसमें माउंटेड है कुछ वेंस एंड ये वेंस जो है वो वाटर कैरी करेंगे। जब इस साइड से अपस्ट्रीम से वाटर इसमें एंटर करेगा सो इस यहाँ से वाटर को ये वैन कैरी करेंगे इस तरह से एंड ये वैन्स जो हैं सेम साइज के हैं, यूनिफॉर्म साइज के हैं एंड विल कैरी दी यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये वाटर यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ वाटर को कैरी करते हुए इस साइड में कहीं पे थ्रो करेंगे एंड डाउन स्ट्रीम साइड में। सो टोटल इसमें वैन्स जो होते हैं वो होते हैं 8। सो वी विल मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ वैन विथ द डिस्चार्ज या वॉल्यूम जो कि पर्टिकुलर वैन कैरी कर रहा है उससे। तो उससे हमें मिल जाएगा कितना अमाउंट ऑफ वाटर ये कैरी कर रहा है एंड कितने राउंड इस व्हील ने या इस डेप्थ रिच मीटर ने लगाए हैं। इससे मल्टीप्लाई करने पे विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। लाइक ये जो व्हील है ये 10 टाइम्स मूव किया है एंड ईच वैन का जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है इट्स 2 मीटर क्यूब। सो 8 into 2 meter cube, 16 meter cube in each revolution. And since I said 10 revolutions, so 16 into 10, 160 meter cube of water ये carry करेगा in 10 revolutions. So in this method, we can record the volume of water carried from upstream to downstream directly. Now इसकी accuracy कितनी होगी? So the accuracy of this depth reach meter is 5% and depth reach meter है इसके 2 standard size हैं एंड स्टैंडर्ड साइज के बेसिस पे इसे स्मॉल एंड लार्ज में कैटेगराइज किया गया है। सो फॉर द स्मॉल डेप्थ रिच मीटर द डाया इज 1.2 मीटर्स एंड 1.2 मीटर से दी डाया होगा तो इसका डिस्चार्ज कैपेसिटी क्या होगा? इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी होगी 30 to 75 लीटर पर सेकेंड। एंड इफ इट्स लार्ज साइज तो लार्ज साइज के केस में द डाया विल बी 1.5 मीटर्स एंड इसकी डिस्चार्ज या वॉल्यूम जो कैरी करेगा उसकी कैपेसिटी होगी 45 to 150 लीटर पर सेकेंड। एंड ये जो डेप्थ रिच मीटर है ये यूज करते हैं या ये पॉपुलर है इन दी यूएसए। एंड इस डेप्थ रिच मीटर का एक एडवांटेज एंड एडवांटेज इज दैट ये डेप्थ रिच मीटर में किसी भी तरह का यदि डेब्रिस आ जाए उस केस में ये किसी भी तरह से डैमेज नहीं होता है एंड इट्स वेरी सिंपल एंड कैन बी यूज्ड फॉर द स्मॉल हेड। नाउ notches and wear. So notches and wear we have already discussed in a particular lecture. There is a lecture irrigation measurement using wear, notch, orifice and mouthpiece. So in that lecture these 4 structures are explained in detail. So please go through this lecture to get the detail about these structures. Now meter gauge. तो इन केस ऑफ ऑरिफिस ये सबमर्ज्ड भी हो सकती है एंड फ्री फ्लो भी हो सकता है। इस केस में ए केस है इसमें जो ऑरिफिस है इट्स सबमर्ज्ड क्योंकि वाटर लेवल जो है इसकी ओपनिंग से अप साइड में है एंड इन दिस केस द ओपनिंग ऑफ वाटर जो है या वाटर लेवल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या ओपनिंग से वाटर लेवल नीचे है। सो दिस वन इज द फ्री फ्लो कंडीशन एंड दिस वन इज द सबमर्ज्ड कंडीशन। तो मीटर गेट जो है ये एक तरह से सबमर्ज्ड ऑरिफिस ही है एंड हियर वी कैन सी इट्स अ गेट। इस तरह से कोई गेट होगा किसी स्ट्रक्चर या डैम में एंड इसके सेंटर में प्रोवाइड करेंगे ये ऑरिफिस। अब ये ऑरिफिस को वी कैन ओपन फुली और partially. So without opening the gate we can release the water by providing some space via orifice or by opening of the orifice either partially or fully. So ये orifice in case of meter gate ये always submerged होगी। अब यदि इसमें full flow condition है या orifice fully flow कर रहा है उस केस में तो हम इसका discharge accurately measure कर सकते हैं। But what if it's partially opened? क्योंकि इसे always fully open नहीं करते हैं, sometimes it's partially open. So partially open के केस में इस वाटर मीटर्स को कैलिब्रेट करते हैं एंड एट डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट हेड पे कितना वाटर से रिलीज हो सकता है या कितना डिस्चार्ज हो सकता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कर्व वी गेट कि ऑरिफिस को ओपन करने में कितना हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रिलीज्ड।
So this meter gates are popular in USA and other countries जहाँ पे जो इरिगेशन वाटर है या वाटर जो कन्वे कर रहे हैं वो चार्ज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम. सो मेजरमेंट करने के लिए पर्टिकुलर वॉल्यूम को रिलीज करने पे उन्हें या डिस्ट्रीब्यूट करने पे उसे चार्ज करना है. सो उस वाटर को डाइवर्ट करने के लिए उसके मेजरमेंट के लिए दे यूज द मीटर गेट. And these meter gates are also used to control the water flowing from one channel to another channel. So this is all about the measurement of irrigation water using volumetric method, velocity area method, and measurement structures. So thank you so much.